This meeting is being recorded. Hello everyone. Good evening, good evening. Good evening everyone. So let me first do certain settings. So hello and welcome. Hey Deepika. Hi Meenu. Hi Anjali. Nice to see you all here. So how was your week? Can you share? Good evening, ma'am. Yes. Oh, Shubda ji. Welcome, welcome. Thank you so much. मतलब गुड इवनिंग मैम. Yes, good evening, good evening. सो मैंने बिट्स मतलब ऐसा नहीं कुछ लोगों के साथ ज्यादा मतलब मैं पूरा कंप्लीट किया, सही मेरा अधूरा रहा, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा. एंड एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी किसी को इतना वैल्यू के हम सुनने बैठते हैं तो इंसान बहुत ओपन होके बताना शुरू करता है. तो वो चीज अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा था कि ओके मतलब ऐसे किसी को वैल्यू देके करने से मतलब बहुत सारा आता है. एंड इंसान ओपन अप होते हैं. एक एक्सपीरियंस में आई फाउंड आउट कि बहुत बहुत मतलब इतना फ्लो के साथ बातें निकल के नहीं आ रही हैं. एंड उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था. एंड somehow I continued as you said, and it was like कि जैसे आपने बोला कि बी रेडी एंड कंपैशनेटली सुनना है. तो समटाइम्स ऐसा लग रहा था कि somebody is nailing me or something like that. So Right. but I continued the thing, and later on I thought what that feeling which I was going through that time, and later on it gave me a little more understanding with myself. And Alright. third I did with my one of colleague. So uh, that was like because we had a mutual understanding already. So that was, I mean, वो इतना निकल के मतलब it was कि हाँ मुझे उसके पर्सपेक्टिव ज्यादा क्लियर हुए regarding our mutual working together in any in the project. But because that relationship was already had a rhythm, so I didn't found any new thing. Maybe I don't know. In that experience with colleague, I didn't find anything uh, like very relevant, which continued. Yeah. Thank you so much, Meenu, for sharing. First of all, I would really appreciate your open mind and the way you have shared. It is not easy. It is not easy always to share our deep-seated emotions and our challenges in relationships. So, before we move towards the deep dissection of what Meenu shared,
I would like to ask you if you found anything in Meenu's sharing for yourself. Yeah, she makes like, I have been observing her for so many years. So she participates in every whatever the assignments are given, and she makes like, Yeah. puts a pressure on the co-colleague like, अभी मीनू ने किया तो मुझे करना ही पड़ेगा like. Yeah. Thank you, Meenu. Thank you so much, Tushar, for sharing. But what I sense from your sharing is that there is a lot of data in your mind, and there are many relationships that you desire to work upon. You are really a very sincere and person who is curious in every relationship. This is what I sense. I can also see it is absolutely up to every one of you to correct me if I am wrong. And Meenu, the biggest thing and the rights I give it to you, because if I go somewhere wrong or if my perceptions are not matching up with the reality, your work is to correct me. All right. So what I see is there is a lot of confusion and a lot of data information in mind, which is not allowing her to see the pictures clearly. So many times what happens when other person is speaking, Meenu is going under the impression of the compulsion of listening. Under the compulsion कि मुझे तो सुनना है. So now what is happening is she is not able to differentiate between their downloading and reality. So when the conversation is going on, sometimes she becomes a victim of her downloading and gets hurt and doesn't like whatever is coming up, but still she is again pressurized under the principle of compassionate listening. Does that happen to you, Meenu? So Very correct. Okay, thank you so much for acknowledging that. Appreciate it. So one thing I would like every one of you to understand, which I went through in my journey of this compassionate listening, and when I addressed it, it was altogether a new revelation. And it cannot be taught by any book, and you are not going to get taught by any other mentor or coach. I can say that. Why? Because the world needs compassion. So we all are taught compassion. We all are asked to spread compassion. But do you know what happens to people who are compassionate in a very natural way? That comes very easily to them. Sometimes they get pressurized, and sometimes people around them make a very good use of that ability of other people to be compassionate. Right? So you need to draw a very fine line between being compassionate and standing up for self. Now, why this point is not that evident, or it is not much talked about? Because people cannot take it very lightly or normally. If I say ना, अगर मैं यहाँ women empowerment का program start करूँ और आपको बोलूँ ना, stand out for yourself, families will start breaking. Because no one understands what is the meaning of standing up for self. Standing up for self का मतलब झगड़ा करना नहीं है. Standing up for self means listening to other people, what they are saying with compassion, and being aware that if what I was thinking till now was my downloading about them, then what they are thinking about me right now is also the downloading, nor the data in my mind is true, neither the data in their mind is true. So my work is to make peace with the data that I have gotten. Because when I don't like the data that is coming my way, I become the victim of my own downloading. Plus, I get pressurized by this principle of compassion, and then I feel constricted in the space as if there is no place to breathe. जैसे किसी ने बांध के रखा है. How many of you have experienced this in your conversations or in your relationships? Yes, thank you so much, Deepika, for coming forward. Thank you, Meenu. So if you are observing it,
that means you're practicing it. So first, pat yourself. Congratulations for following the principles. And if you are standing on this stage, then you are going to emerge as a phoenix. You are going to emerge as a brave warrior. And it is not like only a woman goes through, a man also goes through that. So this is not a territory of women empowerment. This is not a program of women empowerment. This is about compassion, addressing every human being. Thank you so much, Anjali, for addressing that. So now, today's actually intention is to practice stakeholders interview. But before we start the practice with Dr. Deepika, I would like to throw some light on this principle. Other thing I would like to make it clear that please, what I'm sharing right now doesn't come from any book. It comes from my personal experiences, being a curious person, being a person who like to research on human mind and like to, create an experiment and innovate. I would like you to experiment it in your life. If it works for you, take it. If it doesn't work for you, throw it away. All right. It is absolutely your choice because you are the creator of your life. Agree? All right. So whenever you are in a stakeholders interview, whenever you are uh, creating that space of compassion for other person, always do the grounding work for yourself. Always do the ground. How to do the grounding work? Stakeholders interview don't happen out of the way. If you are the one, you know that आपको अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपके लाइफ में कैसा चल रहा है और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ. फर्स्ट टाइम जब मेरे टीममेट ने मुझे कॉल किया था और पूछा था, हिज नेम इज राम, आई वॉज मूव टू द कोर कि आज तक मेरी जिंदगी में तो मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि हाउ कैन आई हेल्प यू टू रीच योर मिशन. किसी ने नहीं बोला. और इस इंसान ने बोला, भले ही वो इंसान कल बात करे, हेल्प करे ना करे, वो एक सेंटेंस, हाउ कैन आई हेल्प यू, वाज एक्चुअली सो हार्ट वार्मिंग. सो when you go on a stakeholders interview, providing that space of help and compassion, always remember your work is to first have compassion for yourself. Now there is a difference between being in that I, me, myself ka ego and having compassion for self. Having compassion for self is a very divine terminology which cannot be misused. Okay, which cannot be uh, equalized with the ego perspective. So when I say compassion to myself, that means compassion and respect to my creator. All right. So when I am compassionate towards myself, I truly admire the work of creator. So grounding means creating that strong kavach of compassion around yourself, thinking that this energy of compassion is so strong, my aura is so strong, my energy is so strong that the downloading of other people are not going to affect me. The downloading of other people is not going to affect me, and I am very happy and grateful to keep my original compassionate nature intact. थोड़ा सा स्लो बोलेंगे. स्पीड में स्लो चाहिए आपको. हाँ. हाँ. So when you are creating that space and aura, the protection of that compassion around yourself. Now listen to this closely. This is very important. If you are already practicing compassion for others, and now you are giving compassion to yourself by saying that this protective energy of compassion is protecting me, you are actually invoking and inviting the divine powers to protect you. So when you say this, the protective cover of compassion is here to protect me and to guide me. I am strong enough not to get affected by the downloading of others. You are ready. You are ready. Stakeholders interviews feel very good when there is appreciation coming your way. But when you say that I will be unaffected by the downloading of other people, and when the other people are appreciating you, it will also not affect you. Because
जब आपकी तारीफें हो रही है, देयर इज अ बिग चांस दैट आप वो ईगो में कैरी अवे हो जाए। तो जब मेरी तारीफ मैं सुनती हूँ किससे, जब हम हमारी तारीफ सुनते हैं, तो कंपैशन और रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए जिसने इतनी सुंदर सोच को अपने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया। लेकिन जब हम बह जाते हैं उस अप्रिसिएशन में, तो फिर से हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू में अगर अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो मेरा ईगो बोलेगा कि देखा हाउ बैड दिस पर्सन इज। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर अ पेरेंट, अगर आपने आपका यू हैव सीन योर चाइल्ड एज 5 years old, इफ 5 साल का बच्चा कभी आके they don't start praising their parents out of a way. Their expressions, their innocence of smile make you feel as if they love you, right? They don't say it, they don't keep on praising because they are not operating from ego. So your work is to do your work, and your work is to keep on working on your energy and keep your energy intact through compassion and gratitude and not get carried away. This way, this is such a powerful way. सामने वाले ने कुछ भी बोला ना, you will be like strong. It can be your boss, it can be your spouse, it can be your child, it can be any subordinate. It's their downloading. What they're speaking is their downloading. And it cannot break me. My work is to see if there is little truth in that. And if there is little truth in that, I'm ready to work on it. Right? So if constantly your downloading brings you down and you don't feel empowered after the stakeholders interview, then you are, imagine as if a devil is eating you, and this devil is made up of your downloading. So your work is to save yourself. So can you practice this compassion for yourself from today? Do you think that this one principle of grounding can give you more space? And if it gives you more space, don't you feel that you will be able to spread compassion more often actually? उसका डर नहीं रहेगा कि यार अभी मेरा मूड नहीं है कंपैशन, यार इसने ना मुझे लास्ट टाइम, ये मेरे बॉस ने मुझे ना कहा बता दिया, इतना अच्छे से करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं है मेरी। नाउ दिस इज आल्सो माय ईगो। नाउ एक बार स्टेक होल्डर इंटरव्यू कर दिया, वहां से बहुत क्रिटिसिज्म, अभी अभी मुझे नहीं इच्छा स्टेक होल्डर इंटरव्यू करने की है, गया ये भाड़ में, ये वो पल्लवी मैम देखते बैठेंगे, काइंडनेस कॉर्नर का मुझे नहीं करना है। I tried twice with one person also, and it came up. Uh, mm, uh, मतलब कुछ नया निकल के आया, बट यस, जो आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी सच्चाई ढूंढनी है, मुझे काफी फ्लैटरिंग लग रहा था, फ्लैटरिंग लगा। मतलब इट वाज मोर प्रेज 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 प्रेज, तो वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, मतलब वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं अगर लगा। जब भी प्रेज और अप्रिसिएशन आ रहा है ना, योर वर्क इज टू अप्रिशिएट देम बैक इन योर माइंड, नॉट टू से इट कि अरे वाह आपने, नहीं, उनको सुनो, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उनको सुनो और मन में वाह, appreciate such thought process. Truly, I need to learn this way of appreciating others from them. आपको वो सहन नहीं हो रहा है बिकॉज आपने कभी इतनी तारीफ मन भर के ना सुनी ना किसी की है। तो जब, और हर एक का तरीका अलग होता है, तो when you accept them as they are in your mind, having compassion is easier.
Yes, Tusha, you wanted to say something? As you said, there will be appreciation in this stakeholder interview. There will be bashing also. So how do you respond to that? Yes, absolutely. So appreciation will be there, and whenever, that's why grounding process is important to make you stronger, so that you're not affected by the criticism if it comes. See, when appreciation comes, everyone is happy, but the reality is that appreciation will come from a very very few people, because हमारी सोसाइटी में अप्रिसिएशन ये नेचुरली नहीं है, और लोगों को अप्रिसिएशन के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। तो अगर आप युद्ध के लिए जाते हैं, तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि अगर आपको मराठी में तो चिलखत म्हणतात, तो वो जो उनका ड्रेस होता है ना मेटल का, जिससे इंजुरी ना हो, तो कोई वॉरियर ये नहीं कहेगा कि मुझे वो चिलखत, मतलब मुझे वो जो मेटल का आर्मर नहीं पहनना है, क्योंकि हो सकता है ना कि उतना जोर से मुझ पे वार ही ना हो। लेकिन बाकी लोग क्या कहेंगे, लेकिन तैयारी में रहना जरूरी है ना। तो इस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना आर्मर हमेशा तैयार होना चाहिए, क्योंकि सामने से क्या वार होगा आपको पता नहीं है, आप रेडी रहें। इसीलिए compassion for self, creating that, it is just a simple exercise, grounding. स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू अगर आप ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आप लेने वाले इस टाइम पे 5 मिनट पहले बैठकर जस्ट अ लॉन्ग ब्रीदिंग 3 टाइम्स, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें और कहें, आई एम कंपैशनेट टू माई सेल्फ, वॉट एवर कम्स माई वे, आई नो दैट इट इज देयर डाउनलोडिंग, आई एम अवेयर दैट इट इज देयर डाउनलोडिंग, just like my downloading, I have my own downloading, they also have their own downloading. And if my downloading is not the reality, their downloading is also not the reality. It is also not the reality. It is the truth that they have created in their mind. So let me see what opens up for me from the data I get. So this is curiosity now. So अभी जैसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास एक डस्टबिन है, आपके पास डस्टबिन है, आपका एक, आपके घर में फंक्शन था, आपके छोटे बच्चे का बर्थडे वगैरह कुछ था, आपने बड़े शौक से अपने बच्चे को एक सोने की अंगूठी पहनाई कि आज बर्थडे है, आज पहन ले। खेलते खेलते सोने की अंगूठी जो है ना, वो गिर गई घर में। आपने सोचा अच्छा हो गया, बर्थडे घर में ही था, किसी बाहर होटल में नहीं किया। फिर बच्चा खेलते खेलते आता है और आपको दिखा अंगूठी कहाँ है, किसी को दे दी, तो बोलता है नहीं मुझे पता नहीं कहाँ गई। आप टेंशन में आ जाते हैं, आप ढूंढने लगते हैं घर में, फिर आप झाड़ू लेके पूरा देखने लगते हो। फिर आपको लगता है कि झाड़ू पोछा वाले शायद काम करके गए, मुझे डस्टबिन में देखना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आप डस्टबिन पे हो और आपके माइंड में चल रहा है मुझे वो सोने की अंगूठी मिलनी है। डस्टबिन में हाथ डालते वक्त आपके मन में क्या सोच आएगी, क्या विचार आएगा? यस ये मीनू? अंगूठी मिल जाएगा। only अंगूठी, to get. हाँ, हाँ। तो आर यू रियली पेइंग अटेंशन कि कचरे के डब्बे में क्या क्या गिराएगा? आपका ध्यान किस पे है? मुझे बस वो अंगूठी मिल जाए। और फिर आप इधर से उधर, कौन से कागज पे क्या लिखा है आपको पता नहीं, कौन से कागज डाले हैं, कोई बिल है कि ये है क्या, नहीं, मुझे अंगूठी। और फिर जब अंगूठी दिख जाती है, ओह वाह, मिल गई मिल गई मिल गई, डू यू केयर कचरे का डब्बा कैसा गिरा, कौन सा कचरा था, क्या था? डू यू केयर अबाउट इट? क्योंकि आपको पता है ये कचरा है। जो मैं ढूंढ रही थी वो सोने की अंगूठी थी, मुझे मिल गई, मेरा काम हो गया। यही स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू है। कचरा बहुत आएगा। हाँ, very well explained, very well. हाँ, हमारा काम क्या है? बस वो सोना ढूंढना। सब डाउनलोडिंग कचरा है, मेरा भी डाउनलोडिंग कचरा, सामने वाले का भी कचरा है। एक बार आपने इसे अपने माइंड में ना ऐसे डाल दिया ना, आई टेल यू, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है। गुस्सा करने वाला इंसान गुस्सा करते रहता है, बड़बड़ करने वाला बड़बड़, आप अपने मजे में मस्त, क्योंकि आपको पता है जो वो कह रहा है वो भी सच नहीं, वो भी कचरा है। अगर मैं उस बारे में सोचूं तो वो भी कचरा है,
आज से 5 साल के बाद ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। रियलिटी तो ये है, आई एम ब्रीदिंग, आई एम अलाइव एंड माय वर्क इज टू एंजॉय दिस मोमेंट। सिंपल। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? अच्छा, आज की डेट पता है ना? 14 अप्रैल है आज। आप मुझे बताइए 14 मार्च को डिनर में आपने क्या खाया था? 12 अप्रैल का मालूम नहीं है तो। एग्जैक्टली, यू हैव ऑल द आंसर्स, कैन यू सी दैट? आप लोगों के पास सारे आंसर है। जब हमें 12 मार्च 12 अप्रैल का याद नहीं है, तो आज का जो सामने वाले इंसान का डाउनलोडिंग जो आ रहा है, क्या मुझे वो याद रहने वाला है 1 साल के बाद? तो व्हाई शुड आई डिस्ट्रॉय माय हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ लिविंग? एक बहुत ही बट सुंदर पल्लवी, ये एक्सेप्टेंस इतना इजीली नहीं होता ना, लेकिन हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे और वैसा आंसर नहीं आएगा, तो फिर वो तो एकदम हो जाता है, लेकिन वो फिर स्क्रैच हो जाता है, लेकिन फिर वो मोबाइल का तो कवर चेंज करना पड़ता है, लेकिन दैट स्क्रैच, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम सो समथिंग से आई या एम वेरी टॉकिंग टू गुड। विद। Yes, very good real life example you are telling, Tushar. But you know, expectation जो है ना, वो हमें pleasant surprises generally नहीं देती है। Generally, मतलब मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि when I expect, like if I come home from clinic and I expect कि मेरा बच्चा एक बार मुझसे बैठ के हंस के बात करे, और नहीं होता है। लेकिन जब मैं एक्सपेक्ट मतलब मैं आती हूँ घर और मुझे लगता है वाह क्या काम किया मैंने, क्या पेशेंट की स्माइल, वाह, इट मेड माय डे। आई कम होम एंड इनफैक्ट आई गिव दैट स्माइल टू माय सन, एंड देन माय सन कम्स टू मी, hugs me, I get pleasantly surprised, ये कैसे हो गया? Because I did not expect. So when you are full of curiosity, then life surprises you more often. And when you are expecting, life will show you the opposite of what you want. तो मतलब आई एम नॉट गिविंग यू एनी philosophy, this is what I have experienced, and the best way to live your life is to just appreciate. This is what I practice myself. Oh wow, I am breathing, what else do I want? And expectation की बात ही नहीं है। when you don't expect, every moment people will give you surprises. People will give you surprises. I don't know whether this is an energy exchange, क्या एनर्जी और थॉट्स ये होता है पता नहीं, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तो लोग आपके लिए ज्यादा करना चाहते हैं। और जब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, मेरी इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल माय हस्बैंड ऑलवेज हैड दिस एक्सपेक्टेशन कि जब मैं घर आऊँ ना, तो पल्लवी ने मुझे ठंडा पानी हाथ में देना चाहिए। अभी आई एम अ क्लिनिशियन। I want to talk about that only, so हाँ expecting a glass of water, ठंडा नहीं ज्यादा भी हाँ चल जाएगा, isn't हाँ that हाँ expectation? वही। like So, expect नहीं करना है। wait, I will just tell you this story. See if you find any gold in this. So he always felt that. So अभी what happened is, uh, my mother has been a housewife, but I am a doctor. I have patients. और कैसा होता है ना, क्लिनिक का वर्क ऐसा होता है कि you get a call anytime. So you go to clinic, then come back. So sometimes I am home, sometimes I am not home. And this idea, many times when he used to say this, it was like my ego was saying, I am also the same human being that you are, who are living in the same house. We have been given same hands and legs. This is our house. We all can take our own water. So why are we making a fuss of it? And my ego was never convinced that मुझे वो अंदर से आया ही नहीं कभी. Then once I just sat down. वैसे तो छोटी चीज है. He's expecting, and then he gets upset. Then he gets upset. Multiple times this happens. So why is this happening? So I understood that actually this is an ego clash, and actually my ego is clashing with his ego. My ego is saying, why should you give water? He can take ना, उसका भी तो घर है ना, दोनों ने घर बनाया, तो वो भी ले सकता है और मैं भी ले, मुझे प्यास लगी तो मैं अगर पानी पी सकती हूँ तो वो भी ले। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम कंपैशन के बारे में अगर बात करें,
तो हम तो कोई अगर स्ट्रेंजर आए हमारे घर में तो हम बिना पूछे पानी दे देते हैं ना। तो लेट अस प्रैक्टिस कंपैशन हियर और देखते हैं क्या होता है। देन आई प्रैक्टिस दिस दैट ही यूज्ड टू कम होम या कहीं भी, मतलब ही यूज्ड टू कम होम ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि मी एंड माय पार्टनर वी गो कम बैक, ये हमारा 100 of times इन डे होते ही रहता है। तो ऐसे हम घर से आए ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि आना जाना चालू ही रहता है। तो चलो एक बार पानी दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, प्लेजेंटली सरप्राइज, बिकॉज ही डिडंट एक्सपेक्ट इट एंड ही गॉट इट एंड ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। इट मेड मी रियली हैप्पी। अरे वाह, सिर्फ पानी का ग्लास इतना खुशी दे सकता है। 2-3 बार किया। 2-3 बार करने के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि इफ आई गिव वाटर ही विल बी हैप्पी। आई लेफ्ट दैट। एंड ऐसा नहीं था कि आई वॉज गिविंग इट एवरी डे, एवरी टाइम इट क्लिक्स माई माइंड आई यूज टू गिव। जब मुझे याद आया चलो आज विशाल को पानी दे देते, ही विल बी हैप्पी, चलो आज ये कर लेते, ऐसे मतलब कोई ये नहीं। Surprisingly, what happened when this act of compassion was going on without me expecting what he will do for me, one day when we were sitting together, then the problem actually got solved. He said that तसं पाहिलं तर तू मला पाणी देणं हे काही कंपल्सरीच नाही आहे. And I was like, अरे this topic is being talked about. And he said that uh, actually we all should be self-sufficient to take our own water, because if we are, अगर हमें ये आदत लग गई कि कोई मुझे पानी देगा तब मैं पीऊं, तो वाटर कंजम्पशन कम हो जाता है। एंड आई कैन सी दैट आई कैन मोर एक्टिव। एंड हमारे घर में एक्चुअली इतना कंफर्टेबल सब कुछ है, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर वाटर। सो उस दिन से व्हाट ही डिड दैट, वो ठंडा पानी की बोतल होती है, पानी भर के ही यूज्ड टू सिट ऑन कंप्यूटर फॉर हिज वर्क, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम फ्रॉम क्लिनिक तो ही यूज्ड टू टेक वाटर फ्रॉम दैट। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरी एक अच्छी चीज ये हुई कि हिज वाटर कंजम्पशन वाज इंक्रीज्ड इन फैक्ट, और ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब आई एम नॉट सेइंग दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, द ओनली थिंग इज दैट फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव आप देखो, हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से या वाइफ से पर्सपेक्टिव से, एक्सपेक्टेशन बंद हो जाती है तब मैजिक स्टार्ट होता है। He's and that happened when you take initiative. When I took that initiative of compassion and not expecting anything in return. हाँ, अभी मैंने पानी दिया ना तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, मुझे एक्नॉलेज करना ही चाहिए, मेरे बारे में अच्छा बोलना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 10 बार अगर पानी दिया तो 8 बार पानी के टेम्परेचर की कंप्लेंट सुनी है मैंने। सो दैट इज नॉट, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट, योर कंपैशन विल फ्लाई अवे। फिर आपका डाउनलोडिंग क्या, एक तो इतना करो और ऊपर से उनका सुनो, इससे अच्छा तो पानी ना देना ही अच्छा है। नो, दिस इज डाउनलोडिंग। यू आर लूजिंग आउट ऑन योर ओरिजिनलिटी। लेकिन अगर वो बदलना नहीं चाहते हैं, इस फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने चोर है और वो बोलता है चोरी करना तो मेरी हैबिट है, तो वो चोरी कर, इसलिए आप चोरी करना नहीं स्टार्ट कर देना। आप चोरी नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपकी हैबिट नहीं है। सो यू आर कीपिंग योर नेचर इंटैक्ट। सो हाउ कैन दैट पर्सन अफेक्ट योर नेचर? इतना पावर तो भाई किसी को नहीं देना है लाइफ में कि आपका कंपैशन वो चुरा ले। इतना पावर तो किसी अपने हस्बैंड को नहीं, वाइफ को नहीं, बच्चे को नहीं, किसी को नहीं। एक्सपेक्टेशंस आर अ ट्रैप। यस, expectation is a trap. It is a mind trap. Expectation, comparison, and ego, all these things are trap created by your mind so that you should not be compassionate, because compassion is not naturally given to you. It is something which takes you to self actualization journey. Self actualization journey is always above your needs, your basic needs. And if you are still in that zone, that I should get this, don't I deserve this much also? अच्छा, क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं? वैसे तो what do I expect from you? I am expecting only to do this. तो ये क्या है? आपका अटैचमेंट है ना आपके एक्सपेक्टेशन के साथ। सो दिस इज नॉट लव। कंपैशन, लव teach us to give. Expectation means taking.
expectation kills you. एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है, पर कभी कभी ऐसे फ्लो में आ जाता है कि इतना तो करना था। इतना तो करना था। Then your work is to communicate it properly. क्या करते हैं हम? कल का मैसेज पढ़ा था क्या ग्रुप में? इन्होंने तो पढ़ा ही था अच्छे से। She had also responded. जितना पास जाओगे ना किसी इंसान के, उसकी खामियां दिखेगी। इट इज जस्ट लाइक अगर आप पहाड़ पे खड़े हैं तो आपको जमीन की छोटे छोटे खड्डे नहीं दिखेंगे, लेकिन जमीन पर अगर खड़े हैं तो छोटे छोटे खड्डे दिखेंगे। तो हमारा वर्क जमीन पे खड्डे क्यों है? सिर्फ रोते बैठने का नहीं है। हमारा वर्क है, चलो कहीं से मिट्टी लेकर आते हैं और गड्ढे को भर देते हैं। सो दैट मीन्स दैट अगर एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा कि फ्लो में थोड़ी थोड़ी तो अपेक्षा होती है ना। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी अपेक्षा कम पूरी होने से मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपका काम इज टू कम्युनिकेट इट विथ कंपैशन एंड अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एंगर। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स एक्सपेक्टेशंस कन्वे कैसे होती है? गुस्सा, ऑर्डर के एंड साथ तुम्हें ऑर्डर करना के था साथ। ये। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी ट्रूथफुल ऑफ यू। सो इट विल नॉट, यू आर नॉट इनवाइटिंग दैट पर्सन, यू आर रिपेलिंग दैट पर्सन। इनविटेशन कैसा होना चाहिए? आपके पास वेडिंग कार्ड आता है ब्यूटीफुल सा, उसमें मस्त कलरफुल पिक्चर होते हैं, नाम होते हैं, फिर आपका भी नाम लिखा होता है, फिर आपके सामने सर मैडम लिखा होता है, तो आपको लगता है ना इस शादी में जाना चाहिए, बड़े सम्मान से बुलाया है ना? तो अगर आप एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो, ऐसी इच्छा है, इनवाइट पीपल, इनवाइट पीपल एंड लुक एट इट एज अ टीम वर्क। उनको एलिवेट करेंगे आप, तो वो आपको एलिवेट करेंगे। उनको आप नीचे खींचेंगे, तो वो आपको नीचे खींचने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। Dr. Pallavi, sometimes I feel like I want to share or communicate with my husband, but I think my strength वो वहां तक वो कुछ एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। जस्ट आई आस्क लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सारी मैं स्ट्रेंथ भी इनर गॉड से मीन्स आई आस्क, सो वो मुझे शक्ति दीजिए कि आई कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली विथ हिम, या मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकूं, ऐसा लगता है, लेकिन आई कांट इन सम मैनर्स। पता नहीं, मैं देखती हूँ, आई बहुत सारा चेक करती हूँ कि क्या व्हाट्स द रीजन। तो कभी कभी पता चलता है कि लॉट्स ऑफ मेरे मन में कि माई ईगो, माई इंटेलेक्चुअल शोज लॉट्स ऑफ वो जो क्या बोलते हैं अभिप्राय, ओपिनियंस। आई कैन सी के सम ऑफ ओपिनियंस फॉर हिम, सो वो हिम्मत नहीं चलती कि नहीं, अगर मैं बोलूंगी ना तो वो ऐसे ही जवाब, मेरी बुद्धि बोल देती है कि मैं अगर ऐसे बोलूंगी तो ऐसे ही जवाब आएगा, इससे अच्छा तो जस्ट अंदर ही हम जो भी है वो कर लेते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती मैं। आई एम आस्किंग मीन्स I think so. So I'm lost. Sorry, I just something was It's okay. happened out of the meeting, so can you please share what you were saying? कम्युनिकेशन, कुछ कुछ बाबतें ऐसी होती है ना, तो ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन तो उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ कम्युनिकेट। हम्म कुछ ऐसे इसमें थे, राइट। तो पता नहीं चल रहा है। मैं इसके ऊपर भी वर्कआउट करती हूँ, तो पता चलता है कि लॉट्स ओपिनियन है, तो ऐसे भय लगता है कि नो, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो फिर ऐसे रिएक्ट होंगे, वही डाउनलोडिंग, वो भी उसके ऊपर वर्कआउट तो चल रहा है, लेकिन बोल नहीं सकती, इतना तो देखा है मैंने। सो सी, कम्युनिकेशन में ना सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग। अभी लिसनिंग ना प्रेशर में अगर आप करोगे कि आई हैव टू लिसन,
आपका हम्म इंटेंशन या कॉन्टेक्स्ट क्या है। मुझे इसलिए सुनना है, मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं पता इनके बारे हम्म में। इवन इफ यू आर मैरिड फॉर 25 years, you can discover new things in that person every now and then, हम्म हम्म if you are curious enough. लेकिन जब हम ये सोचते हैं मुझे पता है यही होने वाला है, और एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि कुछ लोगों का मीन्स हम सभी का बिहेवियर एक पर्टिकुलर वे में बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। हम्म एक टाइम बाद बहुत कि हमें पता है कि अभी ऐसा हुआ है ना, अभी तो बाहर से आए हैं, इनकी चप्पल यहाँ रहेगी, एक चप्पल वहां रहेगी, या फिर ही हैज कम, उनका बैग तो ये जगह पे रखेंगे ही नहीं। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हमें पता होती है। हम्म तो जब कॉन्वर्सेशन होता है ना, तो यू कैन आस्क देम राइट क्वेश्चंस। हम्म Asking the right questions is the key हम्म to create transformation in your life and their life. हम्म For example, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसका लेते हैं कि बैग जगह पे नहीं रखना जब बच्चा स्कूल से आता है। आप इस एक्सपीरियंस को ना किसी भी एक्सपीरियंस से आप ये कर सकते हैं। तो हम्म इफ आई फील दैट माय चाइल्ड कम्स होम, और बचपन से मैंने इसको हैबिट लगाई है कि इसने जब आना है तो बैग अपनी जगह पे रखना है, टिफिन निकाल के रखना है, फिर भी ये नहीं करता है। तो हम्म ये आदित्य, कैन यू डू दिस? हाँ, हमेशा रोज रोज मैं बता रही हूँ फिर भी तो आप सुनते ही नहीं हो। अभी मैंने एक बार बोला, दो बार बोला, 50 बार जब हो जाएगा तो माई चाइल्ड नाउ स्टार्ट्स थिंकिंग दैट अभी मैं आया हूँ, ये ऐसा हुआ है, ये प्रिडिक्टेबली मेरी मम्मी यही बोलने वाली है। हाँ वो ये तो पता हाँ यस यस यू आर राइट नाउ व्हाट इज आवर वर्क इज टू, वही तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी की चेन को ब्रेक करना है। हम्म आई ऑलवेज डू दिस टू माई चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड। जब उन्हें लगता है कि अब ये ऐसा करेगी तो मैं वैसा नहीं करती हूँ, मेरे अर्ज को मैं कंट्रोल कर लेती। लाइक माय चाइल्ड, कल शाम की बात है, माय चाइल्ड वाज सेइंग दैट अभी ऐसा है ना, मम्मी ऐसा बोलेगी, यू आर सो प्रेडिक्टेबल मम्मी, एंड आई वाज लाइक अच्छा ऐसा है क्या, लेट मी प्रूव हिम रॉन्ग। एंड आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड डिडंट रेस्पॉन्ड, डिडंट रिएक्ट, डिडंट से एनीथिंग। ओहो, and he was like surprised that she is not saying and she is not reacting. So what happens is when we become predictable, it becomes a pattern for us and them, and हम्म it becomes very easy for them to blame हम्म us for certain things. So what you can do is have a conversation. Like, Aditya, can we just sit down and talk for 5 minutes? Okay, yes. So मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन पूछा इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग। जब हम ऑर्डर करते हैं ना तो हम दूसरे को कंपल्शन देते हैं, आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, मेरी ये एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप सवाल पूछते हो ना तो आप उनको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब आप सवाल पूछते हो फिर हाँ, तो आई अंडरस्टैंड। अभी आपका कॉन्वर्सेशन कंपैशन से स्टार्ट होगा। आई अंडरस्टैंड, आप आते हो बाहर से बहुत थक जाते हो, और सही में इतनी धूप होती है, इतना काम रहता है, इतने 8-9 घंटे के बाद मुश्किल है ये करना। बस मैं कंसर्न था, मेरा पूछना चाहती हूँ, क्या पूछूं? तो दे विल से यस। सो यू विल टेक, इफ यू कम होम, आप अगर घर आओ तो आपको अच्छा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज घर अच्छा लगेगा कि फैला हुआ? ऑफ कोर्स एवरीवन लाइक्स ऑर्गेनाइज, मुझे ऑर्गेनाइज अच्छा लगेगा। तो मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, कैन यू हेल्प मी? तो कहेंगे कि कैसे? तो नहीं, कुछ नहीं, बाकी पूरा घर का मैं संभाल लूंगी, लेकिन जब आप घर आते हो ना, बस आप इतना सा अगर कर दो ना, बहुत हेल्प हो जाएगी एक्चुअली। बस अभी इसके ऊपर ना अतिशहाणा बनण्याचा प्रयत्न नाही करायचा. असं केल्याने असं होईल, मग आपण काय आपले सल्ल्याचे जेव्हा डोस लावतो ना, तर तिथे थांबा यस मिळत यस तिथे थांबा मिळत नाही, तर समोरच्या व्यक्तीला विचार करायला स्पेस मिळत नाही. सो व्हेन वी डोंट स्टॉप हम्म अँड गिव्ह दॅट, one pause of silence, that point doesn't go home, doesn't hit home. सही है I have to practice this one Yes, it comes through communicate practice. yeah thank you Dr. Pallavi Yes, most welcome. I am very sorry, our agenda was to practice stakeholders interview, but जरा ज्यादा ही लंबा चला है। दीपिका, व्हाट डू यू से? Next time, Pallavi, है not ना, this नेक्स्ट time. टाइम कर, हाँ, Next time. क्योंकि ज़्यादा मुझे लेट लगता हो है गया। कि हाँ, क्वेरीज भी एड्रेस करना जरूरी है बीच बीच में।
क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहे ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी डिमोटिवेट हो जाए to follow stakeholders interview or listening. So let's go slow on this journey, Mm. right? So any question, anyone, any question? If you have practiced listening or stakeholders interview, I got a good experience. yes, please. Yeah, Dr. Deepika. Yeah, Deepika, go ahead. Ladies first, you go ahead. No, Okay. Tushar, you go, please. You go ahead, please. Yes. Uh, yes, I had a good experience. After a long period, my mother-in-law is at our home. She lives with her sister, and she has some challenges, health challenges, she has some mental challenges. She's feeling now insecure. She's 75, and she's single since 98. We got married in 96, so almost lost 27 years. She's single, and her with the other sister, her other daughter is taking care of her, and now she is with us. She's having now lots of challenges, they all up, everyone is planning against me and something like that. But I could all this teachings, everything, not only so many things, what Nilesh has taught us and all that. So I was controlling the whole situation scenario, and with that very difficult time, because being with mother, so I could handle those situations. So it gave me lots of compliment, तुझी सासूला जाम घाबरून असते, तू सांगितलं की ऐकते, तू घरी थांबत जा. And I had in fact 3-4 I got her from Pune, and 3 days I was in Minu's custody. I was in Delhi. So but she said, she was very smooth at that time, before going I had a conversation with my mother-in-law. जाऊन येतोय, तुम्हाला कसं पाठवू नका, कामासाठी जातोय, तुम्ही आलात म्हणून. So all that, so it was a kind of somehow, not as a particular as a stakeholder interview, but she was there with us, she should not feel. So both different relationship has evolved. So maybe these are all conversations which are talking about compassion. So thank you to you and Nilesh and everyone. Thank you. Yeah, thank you so much for sharing, because this, you don't know how your DNA is changing through these conversations about compassion. Like you said ना, ऐसा कोई compassion का इंटरव्यू नहीं हुआ, स्टेकहोल्डर ऐसा कोई फॉलो नहीं किया, लेकिन compassion आपके बीइंग में आ गया, आप नेचुरली और ज्यादा कंपैशनेट हो गए. तो जब आप नेचुरली कंपैशनेट होते हो ना, तो आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, ते म्हणतात ना आचार विचार, तो उसमें Absolutely. पूरा कंपैशन जब आ जाता है ना, सामने वाले इंसान को शब्दों की या किसी एक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, उसके दिल तक कंपैशन की भावना पहुंचती है. एंड यू आर डूइंग दैट वर्क, एंड अननोइंगली यू आर कन्वेइंग. सो अभी आपको पता चला जब आपको फीडबैक मिला, तब तक आपको पता ही नहीं था आपने क्या मैजिक Thank you. क्रिएट किया, right? Thank you. Yes. So thank you True. so much. Thank you for sharing. And I'm Okay. happy to see that compassion is getting into your blood. Very good. Yeah. He's there, getting activated. Yeah, very good. Yeah, it is always there. It needs activation. It needs reminders, you know. It needs To share, the awesome 20 numbers were depleted to the 2 digits. Now we are almost reaching again a 3 digit, we are crossing 100 at times. So that is something which is working. And last 3.5 years, I am constantly being there. You have appreciated that. That appreciation is still in my mind. Yeah, of Nobody else. course, you're doing a great job, and I always appreciate that. Thank And you, I'm thank really sorry that I cannot be a part of those sessions, because I myself have such a tight structure nowadays that yeah. But Thank you so much. you are my you are my impact player. I'll always depend upon you whenever there is no speaker. I always keep that you as an impact player. So be there always. I'll call you sometimes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Tushar. So Thanks. anyone else who would like to share? गुड इवनिंग मैम. Good evening. Good evening, Mahesh. आज का सेशन काफी अच्छा था. तो मैंने भी एक स्टेक होल्डर का इंटरव्यू किया. मैं ज्यादा अंदर तक झांक नहीं पाया इस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि सम टाइम मुझे थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील हुआ कि ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता हूँ मैं. और वो सामने वाला भी उस टाइप का नहीं था कि वो ये सब वो मेरी मजाक ही उड़ाता था.
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग वे से लिया। लेकिन मतलब उसमें मुझे कुछ बातें समझ में आ गई मेरे बारे में कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं समझ रहा था कि मैं लोगों को केयरफुली लिसनिंग करता हूँ या फिर मतलब तो at some time I am not listening for properly. Maybe I am doing something, some work and I am busy in that work and उस टाइम पे वो आके मुझे बता के चला जाता है और फिर बाद में भूल जाता हूँ। तो ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ था मेरे साथ। और कुछ टाइम पे चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फिर भी हम फोकस एक जगह पे रहता है तो प्रॉपरली लिसन नहीं कर पाते। तो ये मैंने नोटिस नहीं किया था, उसने मुझे ये बताया कि ये तुम इम्प्रूव कर लो, तुम्हारे लाइफ में भी ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और अपना भी मतलब काम साथ में करते हैं तो मतलब कुछ पेशेंट से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ ऑफिस वर्क के रिलेटेड भी हो सकता है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू गेट आवर वर्क वेरी स्मूथली, मीन्स काम अच्छे से हो जाएंगे। और दूसरा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं कुछ चीज़ों को ग्रांटेड भी लेता हूँ, मतलब उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता, ऐसा भी हो जाता है। तो उसने ये भी बोला कि मतलब जब तुम्हें सामने वाला मतलब वही चीज में आ जाता है कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसको इंटरेस्ट से सुनकर। तो वही मतलब ग्रांटेड और अटेंशन नहीं दे पा रहा था। तो ये चीजें मुझे और उनके लाइफ में भी ये मैं इम्प्रूवमेंट करेगी मेरे, मतलब अगर मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट किया तो इससे मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, लेकिन वो मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा। थैंक यू। नहीं, आप बहुत आगे बढ़े महेश, आप बहुत आगे बढ़े। आई वुड से दैट यू मीन्स अप्रिशिएट योर सेल्फ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया। डू यू नो व्हाट शिफ्टेड द मोस्ट इन यू, जो आप नहीं देख सकते? जैसे तुषार वॉज शेयरिंग एंड ही कुड नॉट सी व्हाट वाज हैपनिंग इन हिम, लाइक दैट व्हाट आई सेंस एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन यू वाज कि आप अगर पहले के महेश होते तो शायद आपने उस चीज को भी डिसरिगार्ड कर दिया होता। ये क्या बोल रहा है, मुझे इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बट नाउ दैट यू आर इन द कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड एनवायरमेंट ऑफ कंपैशन, और आप थोड़ा क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि अच्छा, मतलब मैं कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, ओके इसका मतलब मुझे ये चेंज करना चाहिए। अच्छा, मतलब कभी कभी मैं ये कर रहा हूँ और सामने वाले को मुझसे वो नहीं मिल रहा है, ऑल राइट आई कैन डू दिस इम्प्रूवमेंट। सो दिस अप्रोच ऑफ ओपन माइंड actually will take you to the pinnacle of success. The person who has capability of being successful never says that I know that. And now you have broken that mold. Oh, ये तो मुझे पता ही नहीं था. So when you say and you wondered कि मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ उनके मन में मेरे मन में है, फिर उन्होंने वो बोला हो, and I thought that okay, this is an opportunity to improve, right? तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, because now you are driven to take action and improve certain things. So you have done a tremendously good job, क्योंकि ऐसे कॉन्वर्सेशन में to get pissed off is easier. मैं तो स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू लेने आया था, ये क्या मुझे ही सुना रहे हैं? मेरे को क्या करना है, मेरी क्या पड़ी है, मुझे कोई पेमेंट मिलने वाला है, बट मुझे नहीं करना ये सब। बट यू जस्ट शिफ्टेड योर पर्सपेक्टिव टू ओ, लेट मी सी व्हाट आई एम गेटिंग फॉर माई सेल्फ। अच्छा, ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए ग्रोथ का, ये मेरे लिए अच्छा सेल्फ डिस्कवरी है। अगर मैंने ये चेंज कर दिया तो शायद आगे मुझे किसी चीज में काम आ सकता है। सो यू आर लिसनिंग नाउ, यू आर लिसनिंग टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स विल नॉट कम टू यू in any bhoot form में. Universe speaks to us through people. यस मैम। Very good discovery, congratulations, very good work Mahesh. Yes, anyone else? All right then, Deepika, would you like to share anything? I did not give the stage to you, now I am pinning you up and please share. नथिंग टू शेयर, बस नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा टाइमली सब लोग आएंगे और सब वीडियो ऑन रखें, तभी वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा। मेरे लिए भी ये न्यू लर्निंग होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, बट हमेशा एक नया लर्निंग होता है। इसलिए मैं सबको कहूँगी सब लोग आएं और पार्टिसिपेट करें, और जो भी ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं सबको इनवाइट करें कि आप लोग भी आएं, कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमेशा हमें आगे ग्रोथ करने में बहुत फायदा करेगा। टू बी कंपैशनेट ऑलवेज। थैंक यू सो मच।
Yes. नमस्ते मैम। आई एम Yes. शुभम पांडे। आपने अभी सही बोला कि जो पर्सन है वो हमें यूनिवर्स के थ्रू बताएंगे। हाँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रह गया है कि जब मैं जो मेरी फैमिली नहीं है, जो बाहर से मुझे जुड़े हैं, तो वो मुझे कंपैशनेट समझते हैं, लेकिन मेरे फैमिली के कोई भी मेंबर मुझे कंपैशनेट नहीं समझता है। तो उसके लिए मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, उनके हिसाब से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो बिल्कुल रीच नहीं होता उनके, तो वो फील नहीं करते कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ। तो मैं और कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रही हूँ, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसके लिए। First of all, I truly appreciate you, शुभदा जी, कि आप एटलीस्ट ये अवेयरनेस में है कि आपको बहुत लोगों ने कहा कि आप कंपैशनेट हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं मानते हैं। ये अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट है। अभी अवेयरनेस क्या करेगा, आपको एक्टिव रखेगा, एंड योर अवेयरनेस विल हेल्प यू टू लिसन टू देम मोर इंटेंटली। ये अपने आप होगा। अगर वो सोचते हैं आई एम नॉट लिसनिंग, इसका मतलब ये नहीं दैट आई विल नॉट लिसन, आई विल ट्राई टू लिसन इवन मोर। तो मैं जिसे बाहर के लोगों को सुनती हूँ ना, इट्स लाइक वी ऑलवेज कीप आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हम जब बाहर जाते हैं तो वो हमारा अच्छा चेहरा दिखाते हैं, जब हम घर आते हैं हम नेचुरल अपने जैसे हो जाते हैं। तो हो सकता है हम बाहर के लोगों के लिए अच्छा सुन रहे हैं, ये भी सही हो, हमें पता नहीं। Maybe it is a message of the universe that I'm really not listening to my family members, and maybe at some place I'm taking that relationship for granted. So let me listen to them more. अगर वो truth हो या ना हो, कोई बात नहीं, उसमें ही जाना है क्या सच है क्या नहीं। मैं सुनती तो हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा सुन लूंगी, क्या कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करूंगी। Maybe it will open up something. थैंक यू सो मच। You're most आई विल welcome. You're कंटिन्यू माय जर्नी। of course. It is so very appreciable, शुभदा जी, कि आप में ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कि आप पानी की तरह बहने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। एंड दिस विल ओपन अप मेनी, मीन्स दिस विल help you get many pleasant surprises. You will see that in the coming month if you stay in the same space. सिर्फ आप अगर सुनते रहे, और जैसे मैंने कहा ना, वो हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी ये ऐसे बिहेव करने वाले हैं, बस उसी टाइम में हमें वो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाना ही नहीं है। सो अपना लेवल अपने से भी ऊपर उठाना, खुद से भी ऊपर उठाना, तो सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाए क्या हो गया इनको। राइट, थैंक यू सो मच। becomes आई विल fun. ट्राई माय बेस्ट। Yeah, all right, thank you so much. So see you everyone on Friday. This meeting was conducted on Monday because on Friday I could not conduct the meeting because of certain unavoidable circumstances. But this Friday again we will meet at 8 p.m. and we will practice stakeholders interview. So Dr. Deepika and Dr. Pallavi will do that so that you can see what is there for you to take from that interview. You can improve on the compassion front. All right. So thank you very much for joining. Thank you. And Bye bye. Date thank and you. dot 9. Yes, Thank you so much, Dr. Pallavi. take care and see you on Friday. Yeah.